Hello everyone. So today we are going to discuss the topic cell organelle and inclusion. This is the part of the chapter 1, the cell of class ninth biology. So today we are starting this topic. So what points should we cover under this topic? That are: first, introduction of the topic, then cell organelles, that starting from the endoplasmic reticulum. We have so many cell organelles just like Golgi apparatus, ribosomes, lysosomes, mitochondria, plastid, vacuoles, cell inclusions, and after that all we get to know that difference between a plant and animal cells. Okay, then starting from the introduction of that topic, that is, what are the cell organelle? Okay, so cell organelle are membrane bound structures that present in the cell of multicellular organism. सेल ऑर्गेनल वह स्ट्रक्चर्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड इट मीन्स दैट हैव द सेपरेट membrane. Okay, and they are present to deal with the metabolic activities and complicated structures and functions. सो वो क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सेल के अंदर उससे डील करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. And each cell organelle has a definite shape, structure, and function. That are the three basic things, that each cell organelle has a definite shape and definite structure and definite function. And this is the characteristic feature of the eukaryotic cell. If you see prokaryotic cell, there are no cell organelle. Even those cells do not have nucleus also. Their nucleus is dissolved in the cytoplasm. उनका न्यूक्लियस भी नहीं होता है बिकॉज वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल दैट मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस. ओके, तो उनके कोई सेल ऑर्गेनाल भी नहीं होते. ये सारे सेल ऑर्गेनाल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज अ एनिमल सेल और वेदर इट इज अ प्लांट सेल. बट most importantly, it is a characteristic feature of eukaryotic cells. Now, starting from the organelles, that endoplasmic reticulum first. ठीक है, endoplasmic reticulum in short we can call ER. ये जो है विजिबल ओनली यूजिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखता है बिकॉज these are too tiny to watch under the light microscope or other simple type of microscope. स्ट्रक्चर अगर इसका देखेंगे तो इट हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड वेसिकल्स. ओके, तो यहाँ पे इफ आई जूम दिस पिक्चर देन यू कैन एबल टू सी the network of tubes and vesicles. There is a network of tube and vesicle, you can see all around there. Okay, now the types, if we see the types of endoplasmic reticulum, there are mainly two types. First, rough endoplasmic reticulum, in short we can call RER, and second is smooth endoplasmic reticulum, in short we can call SER. And now, what is the difference between RER and SER? So, moving on to the next slide. First, we describe rough endoplasmic reticulum, that is RER. Okay, as you can see, it has because of the attachment of large number of grain-like ribosome over their cytoplasmic surface. If I zoom this picture, you can be able to see there are so many type of granular structure present all around the membrane of endoplasmic reticulum. These granular structures are called ribosome. Moving on to the next slide, we can see the function and structure of the ribosome. Okay, ribosome also known as a protein factory. I'll tell you why. These are the site of protein synthesis. Okay, so ribosome are the sites of protein synthesis. It means here the protein synthesis takes place. They are engaged in the synthesis and transport of protein. It means endoplasmic reticulum are engaged in synthesis भी होता है and transport of the protein. ठीक है, RER is well developed
in the cells that synthesize and secrete protein. So रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में अच्छे से डेवलप होता है जो सिंथेसाइज करती यानी प्रोटीन बनाती हैं और सिक्रीट करती हैं. ओके, नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? It has consist of mainly tubes and vesicles. There no ribosome around the cell surface, so it is a smooth. No ribosome present on the cell. It helps in the synthesis of fat or lipid molecule, और ये help करता है synthesis of fat and lipid molecule because they are not synthesizing hair protein, so they are synthesizing fat or lipid molecule. And it has well developed in the cell that secrete the lipids. उन सेलों में ज़्यादा डेवलप होता है जिन सेलों में लिपिड जो है सिक्रीट होता है. इट फॉर्म अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल इन विच द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड आर ट्रांसपोर्टेड वन सेल टू अनदर. इट मीन्स ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनाता है जो लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन के जो होते हैं और लिपिड के होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन सेल से दूसरी सेल तक के. कुछ जो प्रोटीन एंड लिपिड होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं सेल में विद द हेल्प ऑफ endoplasmic reticulum are utilization in building of the cell membrane. तो कुछ protein और lipid, as we know that we have seen the structure of plasma membrane. So as you people know that plasma membrane is mainly composed of protein and lipids. So that is why the endoplasmic reticulum help in the building of that cell membrane. And this process is called the membrane biogenesis. Membrane biogenesis, it means the cell membrane get synthesize with these type of molecule. This is called membrane biogenesis. Okay, now function of endoplasmic reticulum. If we see the functions, so first function of endoplasmic reticulum is support. It means it acts as a supporting skeletal framework of the cell and also maintain its form. तो ये skeletal framework बनाती है सेल का और maintain करती है उसका form. Second, transport of materials. It means it facilitates the transport of materials from one part of the cell to another part of the cell. तो एक part of cell से लेके उस दूसरे part तक और एक cell से दूसरे cell तक ये transport करती है material का. Third जो रहता है exchange of material. It helps in exchange of material between the cytoplasm and the nucleus. तो it create the channel between the nucleus or nucleoplasm and cytoplasm. So it can transport the materials from nucleoplasm to cytoplasm. Localization of organelles. Localization means ये it keeps the organelles properly stationed and distributed in relation to one another. तो organelles को ये fix रखती है अपनी जगह पे, ठीक है, लोकलाइजेशन करती है और स्टेशन रखती है और इक्वली जो एस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसको ये मेंटेन करती है. फिफ्थ, सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो जैसे कि हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने आगे पूरे मेम्ब्रेन पे सरफेस पे राइबोसोम लगे हुए थे, तो ये राइबोसोम के लिए अटैचमेंट की जगह बनाती है और उससे प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करती है. देन सिक्स्थ, द सरफेस फॉर सिंथेसिस फॉर अदर सब्सटेंस लाइक लिपिड और फैट, अभी हमने देखा. देन पैकेजिंग, द प्रोटीन गेट पैक्ड इनटू द सिक्रेटरी वेसल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन को ये पैक करती है सिक्रेटरी वेसल्स में. डिटॉक्सिफिकेशन, देयर आर सम हार्मफुल और टॉक्सिक material also form in the cytoplasm. So detoxification of that substance is done by endoplasmic reticulum. Formation of organelles, तो हमने देखा कि it can form fat, lipid and protein also. So formation of organelle is also a major function of endoplasmic reticulum. Membrane formation, as we see in that membrane biogenesis because of the fat and lipid and protein. So it help also in membrane formation or membrane biogenesis. Okay, next apparatus or next organelle is Golgi apparatus. It is also called Golgi complex. In the plant cell these structure are dictyosome. तो plant में इनको हम dictyosome बोलते हैं. It was discovered by the scientist Camillo Golgi in 1898. Okay, it originates from rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus disc shape होता है. एक organelle consisting of a system membrane bound vesicles होती है जो parallel arrange होती है and flattened sac होता है like saccule called cisternae. If I zoom this picture,
you can be able to see how the parallelly arranged cisternae are there. Okay, this phase is cis phase, this phase is trans phase. Okay, there are cisternae, there are lumen. Okay, so this type of organization can be seen in the Golgi apparatus. So Golgi apparatus is consist of too many cisternaes. Okay, दो पोल्स होते हैं गॉर्गी कॉम्प्लेक्स में. ऊपर वाला जो फेज होता है उसको सिस फेज बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है ट्रांस फेज होता है, जो एक्ट करते हैं रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट्स. तो सिस फेज जो है रिसीव करता है और ट्रांस फेज जो है वो शिपिंग करता है और द बायोमोलिक्यूल्स. ओके, सो फंक्शंस अगर हम देखेंगे, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर, देयर आर सम मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then passes into the Golgi cisternae of Golgi through the cis phase and entering to the another cisternae. Again it is entered to the another cisternae and by the trans phase it get detached from the Golgi apparatus, so secreted by the Golgi apparatus. This is a major function. Okay, so first function is packaging of materials. It modified, sorts and packages the material coming from the endoplasmic reticulum or synthesize in the Golgi itself. खुद Golgi में भी प्रोड्यूस होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मटेरियल्स को भी ये सॉर्ट आउट करता है. सिंथेसाइज इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम. इनका फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और लाइसोसोम के. एक्रोसोम फॉर्मेशन, इफ यू एवर सीन अ पिक्चर ऑफ sperm, so in the sperm head there is a special structure that called head. In the head, apex portion of head, there is a acrosome which help in lysine of egg membrane. So acrosomal formation, it gives the rise to the acrosome in an animal sperm. It is also help in acrosomal formation of yolk. It produces yolk in the egg. Egg में जो white हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एल्बुमिन और जो येलो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं योक. तो योक के फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस जो है हेल्प करता है. राइबोसोम, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है. इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक cell and eukaryotic cell because these are not membrane bound. Okay, so these are dense spherical granule like particle about 150 to 250 Armstrong in diameter. Armstrong is a unit that can measure the very small particles like cell organelles. Okay, these were discovered by the George Palade in 1955 under the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. राइबोसोम जो है वो सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में मिलते हैं. इन प्रोकैरियोटिक सेल दे अकर फ्री इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. तो ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं मैट्रिक्स में और 70 एस साइज के होते हैं. व्हाट इज एस? S is the Swedberg's unit. Swedberg's unit, it means it is also coefficient to measure the smaller subunit like ribosome. Okay, in eukaryotic cell they occur freely as well as attached to the cytoplasmic surface such as RER under the nuclear envelope. तो यूकैरियोटिक सेल में ये फ्रीली भी घूमते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, और कई बार ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि हमने देखा था एंड न्यूक्लियर एनवेलप के चारों तरफ अटैच रहते हैं. बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में. केमिकली बोथ राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है और प्रोटीन की. तो इसमें दो सब यूनिट होती है. ऊपर वाली सब यूनिट को बोलते हैं हम लार्जर सब यूनिट एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड जो नीचे वाली सब यूनिट होती है उसको स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं. फंक्शन राइबोसोम का ये होता है, सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. दिस इज द प्रोटीन चेन ऑफ प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइजिंग बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम. सो दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. ओके, नाउ लाइसोसोम. लाइसिस मतलब होता है डिसोल्यूशन एंड सोमा मतलब होता है बॉडी. सो लाइसोसोम इज द समथिंग विच dissolve into the body. So these are membrane bound vacuolar organelle होते हैं. ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के इन द यूकैरियोटिक सेल, मतलब ये सेल को ही डाइजेस्ट करने का काम करते हैं.
इनको फर्स्ट डिस्कवर किया था सी डी ड्वे ने 1949 एंड इट इज विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली. दे आर वेरी टाइनी, स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इवनली cytoplasm. Okay, their granular fluid contain hydrolytic or digestive enzyme. These hydrolytic enzyme are capable of digesting all organic material. तो इनके अंदर एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं, यानी डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं, जो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट और मेल्ट कर सकते हैं. उनका जो मेम्ब्रेन है उन एंजाइम को बाहर निकलने से रोकती है. ओके, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है. देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग. यानी कि जब सेल में कभी व्हेन द सिस्टम ऑफ सेल गेट डिस्टर्ब्ड with infection of any bacteria or somehow any other reason, then lysosome get burst and the whole cell get digested. पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है. तो इस तरीके से इसीलिए बोलते हैं लाइसोसोम आर द सुसाइडल बैग. ओके, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम अगर देखेंगे तो एज आई प्रीवियसली डिस्कस, डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल फर्स्ट काम होता है. सेकेंड होता है डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, that engulfing or something and digesting it. Okay, third the digestion of unwanted material, and fourth hota hai autophagy. Autophagy means self digestion or self lysis of the cell, hence it is called the suicidal bag of the cell. Okay, now mitochondria, it is a powerhouse of the cell. Okay, singular मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे हैं तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. सिंगुलर यूनिट को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, बट डिटेल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये यूजुअली सॉसेज शेप के होते हैं. सॉसेज मतलब छोटी सी प्लेट होती है उस साइज की. मे बी स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, इवन ब्रांच भी हो सकते हैं. देयर आर so many type of mitochondria can be seen under the different type of cell. Each mitochondrion is bounded by the double membrane envelope. तो आप देख सकते हैं there is a double membrane envelope around the mitochondria. outer membrane जो होता है स्मूथ एंड फ्रीली परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल के और मीडियम साइज के मॉलिक्यूल और आयन के लिए. बट जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज थ्रोन इनटू द न्यूमरस फोल्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सेवरल टाइम. दिस फोल्ड आर कॉल्ड सिस्टर्नी. तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर आर सम फोल्ड प्रेजेंट इन द mitochondria that increase the surface area for the cellular respiration. Okay, और जो अंदर जो फोल्ड बनते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी. सिंगल होता है क्रिस्टी बोलते हैं, सिंगुलर होता है क्रिस्टा. द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टी एज इन अ चैम्बर, इट इज फिल्ड विद डेंस फ्लूइड कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो उसके अंदर जो भरा होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनल, बहुत अजीब ऑर्गेनल्स होते हैं. इन सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए, उनका खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन. तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन खुद से भी बना सकते हैं. तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है ये. ओके, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया द मेन सीट ऑफ सेल रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है. दे यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ब्रिंग अबाउट द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ. तो ये क्या करते हैं, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं फूड स्टफ का, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल टू द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो रेस्पिरेशन के बाद जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी विच टेम्परली स्टोर्ड इन अ हाई एनर्जी ATP, that is adenosine triphosphate. And what is adenosine triphosphate? This is the currency of energy. So on this account, the mitochondria often described as the powerhouse of the cell. तो इसको आप power house बोलते हैं because it provides the energy to all parts of the cell. Energy is stored in the form of ATP, and ATP is known as energy currency of the cell. I am giving you an example that each country has their own currency, just like India have rupees as their currency, just like dollar as the currency of some of the countries. There is a yen is the currency of the some country. So just like the currency of energy is ATP.
So higher ATP, it means higher energy. Lower ATP means lower energy. One molecule of glucose, after the oxidation, it gives the 38 amount of ATP. Okay, so ATP is the measuring unit of energy. Just like measuring unit of electricity is watt or volt, just like as that. Okay, now plastids. uh, Here we can see that they are present only in the plant cell, and there are so many type of plastids, but here we are mentioning only the two types. First is chromoplast, that is color plastics, and leucoplast, that's colorless plastids. क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, जो एक क्रोमोप्लास्ट है. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और उसी को कंटेन करने वाले प्लास्टिड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट बिकॉज दे कैन यूज वाटर, सनलाइट, carbon dioxide and make their own food, and that is why the plant also seen in the green color. Okay, it is also contain the various yellow and orange pigment in addition to chlorophyll. Due to the presence of carotenoid, it found in the certain algae and flowers, fruit and root of the higher plant. तो कुछ कलरफुल उसमें पिगमेंट और भी होते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी जो है अलग कलर के होते हैं, फ्लावर, फ्रूट्स एंड रूट में अलग कलर के होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं. दे आर प्राइमरी ऑर्गेनल विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं. अगर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे प्लास्टिड्स का, बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट का, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. तो जो मटेरियल होता है स्ट्रोमा, उसमें बहुत सारे जो बॉडी जो दिख रही है वो थैलेकॉइड होता है, और डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर है ये भी. Like mitochondria, the plastid also have their own DNA and ribosomes. Function, agar if we see the function of plastids that help in the photosynthesis, that is the main function of chloroplast, and attract the pollinators for pollination. This is the main function of chromoplast, just like in flower and fruit. Okay, store food in the form of starch, that carbohydrates, that fats and protein. This is the primarily function of leucoplast, to store the food in form of starch, just like carbohydrate, fat and protein. Now वैक्यूल भी सारे सेल में मिलते हैं. स्मॉल होते हैं साइज में, बट मोर होते हैं नंबर में एनिमल सेल में. प्लांट सेल में और फंगस सेल में लार्ज साइज के होते हैं, लेकिन बहुत कम वैक्यूल देखने को मिलते हैं. वैक्यूल जो है स्टोरेज सैक के जैसे काम करते हैं, लिक्विड कंटेंट और सॉलिड कंटेंट को, और एक यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं. फंक्शन उसका देखेंगे वैक्यूल का, स्टोरेज ऑफ मटेरियल में भी लिक्विड और सॉलिड, लाइक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको. सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज वैक्यूल रहते हैं जो मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस का बॉडी में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. प्लांट्स में वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं, यानी जो प्लांट जो होते हैं बहुत टफ एंड टाइट जो है वो सीधे इरेक्ट रहते हैं, तो उसको ये वैक्यूल सपोर्ट देने का काम करते हैं. नाउ इट इज टाइम टू हैव द सेल इंक्लूजन. सेल इंक्लूजन आर नॉन लिविंग मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म. दे आर ऑफन कॉल्ड ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंस. दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं. कॉमन सेल इंक्लूजन जो है स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन करते हैं, एंड इनऑर्गेनिक क्रिस्टल को भी स्टोर करते हैं. ये है सेल इंक्लूजन के फीचर्स. नाउ अभी तक हमने सारे सेल ऑर्गेनल देख लिए. अब प्लांट और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंट होता है इन सेल ऑर्गेनल्स और इन सबको एस्पेक्ट्स पे देखें, तो जो प्लांट सेल होती है यूजुअली लार्जर होते हैं एनिमल सेल से, एनिमल सेल यूजुअली स्मॉलर होती है प्लांट सेल से. सेल वॉल प्रेजेंट होता है एडिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और मिडिल लैमेली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल भी रहती है. सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होता है एनिमल सेल में. प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कि जो पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज और परमानेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल और टेम्पररी होती है. टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट नहीं होते. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होती है,
मोटाइल सेल्स को छोड़ दें, अगर लोअर प्लांट से, जैसे क्लाइडोमोनास जो एल्गी है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, सेल के जो पेरिफेरी है उसके पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है सेंटर ऑफ द सेल में होता है। लाइसोसोम रेयर होते हैं, एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज मटेरियल जो रहता है वो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, और एनिमल सेल में स्टोरेज मटेरियल जो है ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस हमको बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द सिमिलरिटी दैट एनिमल एंड प्लांट बोथ हैव यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो here I have taken from all this. So thank you for watching this video, and I hope it has cleared so many of your doubts and understanding of the topic. So thank you once again.